السلام علیکم جی جناب امان پروردہ کی ایپیسوڈ 19 اور بہت ہی زیادہ مزیدار اور آپ کہہ سکتے ہیں کھٹی میٹھی سی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں، تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف، اور کس کے آخر میں جو نوٹس ہوتے ہیں ان کو لازماً سنا کیجیے کیا کریں، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے میسیجز ہوتے ہیں جو پھر آپ اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں فوراً کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ تو سیدھے سے نہیں کہہ سکتی تھی یہ تقریری بیان دینا کیا بہت ضروری تھا؟ یہاں سو جاؤ تم، میں وہاں سو جاؤں گا، کیونکہ میری تم جیسی کوئی الٹی عادت نہیں ہے۔ اور یہاں دھیان سے سوئچ بورڈ آن کرنا، یہ پنکھا بھی نہ جلا دینا۔ جیسی تمہاری ارتھ ہوئی زبان ہے ویسے ہی ہاتھ ہیں، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں خرابی پیدا ہی کرتے ہیں۔ پھاڑ کھاتے لہجے میں احسان عظیم جتاتا ہوا داران اپنا کمرہ دے گیا تھا، پر گز بھر لمبی زبان کے جو مظاہرے دکھا کر گیا تھا، اس پر داریہ کا بس چلتا تو اسی کمرے کے پنکھے سے داران کو لٹکا دیتی، مٹھیاں بیچ کر برداشت کرتی رہ گئی۔ کس قسم کا لڑاکو بدتمیز انسان ہے یہ وحشی بکواس آدمی، سمجھتا کیا ہے خود کو، اور مجھے کیا سمجھ کر رکھا ہے اس نے؟ کوئی غلام ہوں جسے جب چاہے جاڑ دے گا؟ تم مجھے امان دے رہے ہو، صرف اس کا لحاظ کر رہی ہوں ماہر شاہ، ورنہ تم پر 2 حرف بیچ کر اب تک تمہاری زندگی سے نکل چکی ہوتی۔ جیسی بھی مضبوط اور بہادر تھی وہ، لیکن کبھی ایسی بے بسی سے نہ گزری تھی جیسی اس حویلی میں اس کے جسم و جان پر طاری تھی، اس شخص کے سامنے حواسوں پر چھا جاتی تھی۔ ذرا دل نہیں کر رہا تمہارے بستر پر لیٹنے کا، کاش یہ بیڈ پورے کمرے سمیت تمہارے سر پر مار سکتی۔ گہرے گہرے سانس بھر کر اپنے اشتعال کی لگامیں کستی داریہ یہاں بھی ہوتی کٹن کے سبب کھڑکی کی طرف چلی آئی، تمام پردے ہٹا دیے، اے سی بند کیا اور آہستہ سے پنکھا چلا لیا تو غارت سکون واپس لوٹنے لگا۔ باہر باقاعدہ ٹھنڈ تھی جو کھڑکیوں کے کھلنے کے سبب جب کمرے میں داخل ہوئی تو داریہ کی آنکھیں پرسکون ہونے لگیں۔ وہ لان میں نظریں جمائے ہوئے کافی دیر کھڑی رہی، مگر تب اس کی آنکھوں کی پتلیاں تھمیں جب اسے لان میں داران حویلی سے باہر نکل کر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی ہوڈی تھی اور دوسرے ہاتھ میں کچھ دبایا ہوا اور چہرہ سنگلاس چٹانوں سے سختی سے مزین۔ داریہ کے دل کو دھکا سا لگا، داران نے وہ ہوڈی لان کے کنارے پر پتھریلی جگہ پھینکی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ایک کونا لائٹر سے جلا دیا، کچھ تنکے بھی اوپر رکھے جس کے سبب وہ بہت جلدی آگ پکڑ گئی۔ داریہ یہ منظر پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ماہر شاہ، اگر یہ میری ہوڈی ہوئی تو آج تمہارا یہاں سے جنازہ نکلے گا۔ کھڑکی کا پٹخ کر وہ تیزی سے ہوش کرتی بھاگ کر کمرے سے نکلی۔ راستے کی ہر شے کو ٹھوکر مارتے سے یہ تک ہوش نہ رہی اس کا پیر بھی زخمی ہوا ہے۔ اس کے قدموں کی دمک سنے وہ آگ کے شعلوں کو سپاٹ نظروں سے دیکھتا پلٹا تو داریہ کو وہاں بھاگ کر رکتا دیکھے اس کی اور جلتی ہوڈی کے بیچ میں لمحے میں حائل ہوا۔ داریہ نے یوں دیکھا جیسے چیر پھاڑ دے گی۔ جلا دی میں نے یہ فساد کی جڑ، بہت لپٹا رہی تھی تم اسے خود سے، اب لپٹا لو۔ ظلم کا اگر کوئی آخری نقطہ ہوتا تو وہ داران کے اسی عمل کو کہا جاتا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی کہ کیوں کیا تم نے یہ منحوس انسان؟ وہ کسی کی امانت تھی، ہٹو، کیسے جلا سکتے ہو تم میری امیدوں کو؟ اسی کے سہارے تو مجھے اس سے ملنا تھا۔ اسے پرے دھکیلتی وہ جلتی آگ کے پاس جا بیٹھی۔ داران کو لگا وہ اسے جلا چکا ہے، یہ راکھ داریہ کی ہے۔ وہ آدھی جل چکی ہوڈی کو بھری ہوئی دردناک نظروں سے تکتے باقی کو آگ کی گرفت سے جاتا دیکھے وہیں گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے بیٹھی، اس سے پہلے ہاتھ بڑھا کر اس جلی ہوڈی کو جلنے سے بچاتی۔ داران نے اس کا ہاتھ پکڑتے نہ صرف اس سے روکا بلکہ اسے بازو سے دبوچ کر لہراتے کھڑا کیا۔ میں تمہیں اپنی کوئی شرط دے دیتا ہوں، اس سے لپٹ لینا داریہ ذی الحان، لیکن وہ کیا ہے نا، جب تک تم میری ملکیت ہو تمہارے ساتھ جڑی کوئی بے جان رقیب چیز بھی مجھے گوارا نہیں۔ اب بھی اسے اپنے کیے پر کوئی ملال نہ تھا۔ داریہ نے مسلسل مزاحمت کرتے ناگواریت سے منہ پھیرا، وہ اس ہوڈی کی طرح خود بھی آگ میں جھلس رہی تھی۔ تمہاری شرٹ کو تو میں اپنے پیروں کے نیچے آئی زمین صاف کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتی ماہر شاہ۔ تم نے اسے تو جلا دیا، لیکن میرے دل سے اسے کیسے مٹاؤ گے، اس جیتے جاگتے رقیب کو؟ بولو۔ اس وقت داریہ کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ وہ داران ماہر کا گریبان پکڑے اس کی گریش بلو آنکھوں کی تپش کو دو کوڑی کر کے رکھ گئی مار کر۔ وہ بنا کوئی لحاظ کیے منہ پھاڑ کر اس آرام سے بولنے کے بیچ داریہ کے ہاتھوں سے گریبان جھٹک گیا کہ وہ سانس تک روک گئی، 2 قدم اس سے دور دھکیلی گئی۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی ماہر شاہ، تم نے یہ ہوڈی نہیں جلائی، تم نے میرے دل کو آگ لگائی ہے، اور قسم کھاتی ہوں اب تمہاری دی امان کا کوئی لحاظ نہیں کروں گی۔ تم ایک تکلیف دو گے میں 10 دوں گی، اب اس کی خاک منہ پر مل لینا، اسی لائق ہو تم۔ مجھے جلد تم سے نفرت ہو جائے گی، اس نفرت کے سبب تم بھی اس ہوڈی کی طرح جلو گے۔ وہ اس لمحہ اس سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی اپنی تکلیف نکال گئی۔ وہ داریہ کی نہ یہ تکلیف بھول سکتا تھا، نہ نظر، نہ اس کے آنسو۔ ٹھیک ہے جل لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی ڈٹھائی پر داریہ سے پرے دھکیلتی وہاں سے روتی ہوئی بھاگ گئی، جبکہ داران نے اس راکھ کو دیکھتے مسکرا کر وہیں 2 زانوں بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر انگلی کی پوریں سے آگ کی۔ جب تک چاہوں گا میں یوں ہی ستاؤں گا تمہیں، یہ میری ضد نہیں ہے داریہ، یہ میری عادت ہے۔ تم عجیب عادتوں کی ماری ہو تو
दानान माहिर शाह संगीन आदतों का मारा है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्यों तुम मुझसे रोती हुई बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा क्या रिश्ता है मेरे दिल का तुम्हारे आंसुओं से। मुझे जानना है कि तुम असल में क्या हो। तुम जिस दिन मुझ पर पूरी खुल गई मैं अपने सारे जुर्म कबूल कर लूँगा, मैं अपनी हर सज़ा सहूँगा, लेकिन तब तक सब ऐसा ही रहेगा। दारान ने वो स्याही माइल हाक अपने माथे पर बिल्कुल वैसे लगाई जैसे फौजी जंग के मैदान में उतरते वक्त जीत का आज़म करते अपने चेहरों को स्याही माइल लकीरों से भरते हैं। जबकि दारिया की थकन क्या उतरती कि उसकी तो दुनिया देर कर दी थी। दारान ने बिना एसी और पंखे के ही वो वापस अपने कमरे में आई और दरवाजे में बैठती गई। पूरा जिस्म अजीब से दर्द का शिकार था। मैंने तुम्हारी अमानत खो दी एग्जीक्यूशनर। अब मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हें देख पाऊँ या ढूंढूँ। दारिया तुम्हारे मामले में भी अमीन नहीं रही। इट्स ओवर, क्योंकि मैं तुम्हारी शर्त जीते जी तो नहीं मान सकती और तुम दारान माहिर शाह अपने पैदा होने पर पछताओगे अब। कितनी अजीब बात थी, वो एक ही शख्स से मोहब्बत और नफरत दोनों जज्बे जोड़ रही थी। दोनों जज्बे शदीद थे और ये शिद्दत कभी भी खैर नहीं लाया करती। नज़र अपने ज़ख्मी पैर के तलवे की जानिब गई। इससे खून निकलकर फर्श पर निशान छोड़ चुका था, लेकिन दारिया को ये छोटी मोटी खराशें या तकलीफ़ें महसूस ही नहीं होती थीं। वो मुझसे इसलिए नफ़रत करता है क्योंकि मैं कातिल की बेटी हूँ, बदनाम ज़माना हूँ और शायद उसके नज़दीक बदकिरदार भी। तो गलत कहाँ है वो दारिया? इससे मुझे अच्छे की उम्मीद क्यों है, जबकि वो भी तो दारिया को पत्थर मारने वाली दुनिया जैसा है। अमान तो इसने मुझे अपनी दादी के कहर से बचाने को दी है। ये अहद तो नहीं लिया था इसने मुझे दुनिया और ख़ुद के जुल्म से भी बचाएगा। तो मैं क्यों हूँ इस पर गुस्सा? गुस्सा तो अपनों पर किया जाता है, वो मेरा नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। पैर के जख्म को हाथ से ही दबाए वो अपनी कुछ देर पहले की सोचों को जुटला गई। सच ही था, इसे दारान से अच्छे की तवक्को क्यों होती? तुम्हें अपने जख्मों पर बचपन से खुद मरहम रखने की आदत है, तो फिर क्यों उम्मीद कर रही हो वो तुम्हारी तकलीफ पर तड़पेगा? उससे मेरी कुल दौलत जलाते शर्म नहीं आई। जब तो मुझे कत्ल भी कर देगा तो पछताएगा नहीं। तुमसे क्या शिकवा माहिर शाह, तुमने अमान देने के बावजूद मेरे लिए खुद को दुनिया कर लिया। बाढ़ में जाओ तुम। धीरे धीरे तकलीफ बढ़ने लगी तो वो ज़मीन से उठकर लड़खड़ाती हुई मैट्रेस पर बैठी और आंखों में इस कदर सोजिश गम था कि लेटते ही उसकी आंखें नींद, तकलीफ और नाउमीदी के गलबे से बंद हो गई। देखते ही देखते वो नींद में उतर गई। अभी कुछ वक्त ही गुजरा कि दरवाज़ा खुला। दारिया के ज़ख्मी पैर से निकलते खून के धब्बे वो बाहर देख चुका था, तभी इससे रहा ना गया। वो बैठे बैठे सो गई थी। दारान ने उसके सूजे पैर की जानिब जख्मी सी निगाह डाली और फिर दाएं तरफ करवट बदल कर सोई दारिया को तकता करीब आया। फर्स्ट एड बॉक्स उसके हाथ में था और वहीं उसके पैरों में बैठे उसका जख्मी पैर अपनी थाई पर रखते पहले फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन निकाल कर स्प्रिट लगाए खून साफ किया और फिर आहिस्तगी से इस लगे इतने बड़े कट पर पट्टी बांधी। वो गहरी नींद में गुम, गहरी तकलीफ में ज़्यादा थी। तभी इसे कोई होश नहीं था। अपना काम मुकम्मल किए उठा, बेतासुर निगाह दारिया के चेहरे पर फेरते पलट के कमरे से निकल गया। देखते ही देखते वो रात शहर की रोशनी से बदल कर सुबह बनने लगी। पैर में किसी चीज़ का दबाव के सबब होते मुबहिम दर्द पर दारिया की आंख खुली। कुछ करीब ही बुलंद होती अजान फजर की मशहूर कुन आवाज़ थी कि वो उठ तो गई, मगर अजान मुकम्मल होने तक कलसमंदी से लेटे इस आवाज़ को सुनती रही। आज वादिय सून की आबाई मस्जिद में अजान देने वाला दारान माहिर शाह था। ऐसी अजान जिसे सब लोग अपना काम छोड़ कर सुनते थे, जो महीनों बाद मस्जिद में सुनाई दिया करती थी। कितनी प्यारी आवाज़ है इस बंदे की। आवाज़ एक तरफ, कितना सोज है इसके लहजे में। आपने अपने बंदों को कैसी कैसी तासीर दे दी है, थोड़ी सी मुझे भी दे दें कि मैं आपको मना सकूं। वो लेटे लेटे आंखें मूंद गई। उसकी आंख से नमी गिर कर मैट्रेस में जज़ब हो गई। मैं नहीं जानती आपने मेरे लिए क्या सोचा है अल्लाह, पर मैं थक गई हूँ। या मुझे ये थकन मिटाने का कोई रास्ता दिखाएं या मुझे अपने पास बुला लें। मेरे इस दुनिया से जाने पर बस 3 लोग ही तो रोएंगे, मेरे बड़ी, लाला और मेरी अन्नू। लेकिन अगर जीते जी मैं यूं ही सुलगती तड़पती रही तो इन तीनों को होती तकलीफ मेरी मौत की तकलीफ से 1000 गुना ज़्यादा होगी। वो जीने पर मजबूर थी तो इन 3 के सबब ही, पर जिस्म से कुव्वत चढ़ने लग गई थी। इसी कैफियत में वो उठकर बैठी तो उसे ये बताया गया कि कोई चौथा भी होगा उसकी मौत पर मुतासिर होने वाला। अपने जख्मी पैर की मसीहाई देखकर वो हल्क तक दहक गई। तुम इस ज़ख्म को कुरेदते थे तभी जचता तुम पर मरहम लगाकर मज़ीद बुरे लग रहे हो। माहिर शाह, मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। गुस्से से फ़ौरन पैर से पट्टी उखाड़ कर दो, फिर दूर फेंकी। ज़ख्म कदरे मुंदमिल हो चुका था। उठकर वो नाराज़ सी ताज़ा दम होने बढ़ गई। कुछ देर तिलावत की, फिर कितनी ही देर खिड़की के साथ लगकर खड़ी रही। आज मामू और लाला से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था, तभी जाने का प्लान भी बनाया। 8 यूं ही बज गए, मगर वो भूखी प्यासी ठीक 8 बजे वापस मैट्रेस पर जाकर लेटी और सोने की कोशिश करने लगी। मावल ने नाश्ते पर सबको बताया कि वो कॉलेज से फ्री हो गई है, जबकि दारान को भी ये झूठ लगा, मगर मावल ने कोई सफाई न दी और उठकर चली गई। दारान को बाबा सरकार और माया दोनों ही अपसेट लगे, लेकिन चूंकि दोनों को जाना था तभी दारान इनसे वापसी पर तमाम मामला
डिस्कस करने का सोचते खुद भी उस्मान की तरफ नाश्ता करने निकल गया। 1.5 घंटे तक मौसूफ की वापसी हुई तो सीधा किचन में आया। आपको कुछ चाहिए दारान भाई? आमिर ने उसको बावर्ची हाल के दरवाजे में खड़ा देखते करीब चले आते पूछा। नहीं, क्या दारिया ने नाश्ता किया है? सरसरी से लहजे में पूछा तो आमिर नफ़ी में सर हिला गया। नहीं, वो जागी नहीं है, उन्हें कमरे से निकल कर नीचे आता नहीं देखा भाई। आपा ने उनको कहा भी था और 8 बजे जाग जाइएगा, पर शायद वो लेट उठने की आदी हों। आमिर ने कदरे फिक्र से जवाब दिया। दारान ने सर हिलाया और जीने चढ़ता दारिया के कमरे की तरफ बढ़ा। वो कब से सोने की कोशिश में हलकान हुए जा रही थी, पर अब भूख इस जिद से तगड़ी महसूस हो रही थी। वो कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नई खुशबू उसकी मौजूदगी का पता दारिया को कमरे में फैल कर करवा चुकी थी, लेकिन वो सख्ती से आंखें बंद कर की। दारान पहले तो इसे देखता रहा, फिर झुककर दोनों हाथों से उसकी करवट सीधी की अपने मुकाबिल करता बाकायदा से उठाते हुए ज़मीन पर उतारे जैसे खड़ा करवा गया। दारिया आंखें फाड़े उसके इस बदतहजीब अमल पर सटपटा गई। वो उसकी रूबरू मोमी गुड़िया है, इस पागल बंदे ने साबित कर दिया था। कल शाम से कुछ नहीं खाया तुमने? क्या कोई चिल्ला काट रही हो या भूख हड़ताल चल रही है? देखो जारिया, दारिया ज़िमिल कोई यहाँ मिन्नतें करके तुम्हारे मुंह में नवाले नहीं डालेगा। नाश्ते के बाद नीचे क्यों नहीं गई तुम? उसके सीधे साधे सवाल पर वो जो हनूज उसके हिसार में खड़ी सुन मालूम हो रही थी, पूरी कुव्वत से अपने बाजू छुड़वाती उसके साये से दूर सिर की। मिन्नतें करवाने की ना मुझे आदत है ना शौक। भूख नहीं है और किसी इंसान को मतवज्जा करने के कुछ एटिकेट्स होते हैं। लगता है किसी जंगल से आए हो तुम। दारिया का इशारा दारान के कुछ देर पहले से लेटे से लम्हे में ज़मीन पर खड़ा करवाने वाली बेबाक हरकत की तरफ था। दारान ने तहम्मुल से उसकी कड़वी बात सुनी। गो वो इसका आदी ना था। मेरा जंगलीपन अभी तुमने देखा ही कहाँ है? क्या खुदी के जलने का मातम मना रही हो? तो सुन लो, मुझे तुम ऐसा बेकार मातम करती भी नज़र ना आओ। हर बात पर एतराज़ करके दारिया को जिज कर रहा था। नहीं, अपने दिल के राख होने का मातम मना रही हूँ। जैसे मेरा तुम पर कोई हक नहीं, वैसे तुम्हारा भी मुझ पर ऐसा कोई हक नहीं। सो इन पाबंदियों का पटारा समेट कर चलते बनो। आज मैं घर जाऊंगी और वहीं रुकूंगी। अपनी दादी सरकारां और अहले खाना को बता देना मेरी गैर मौजूदगी का सबब। उसके इल्म में इजाफे के साथ ही वो पलटी, मगर दारान ने बाजू दबोच कर एक झटके से लहराया तो वो दारान के सीने से टकराई, लेकिन फौरी फासला बनाकर घूरने लगी। मैं साथ चलूँगा। तारिया लम्हा भर उसके इतने करीब जाकर वापस पीछे हटने पर फितरी बदहवास हुई। वाच, तुम क्यों जाओगे? सूली सवाल तरख्ते किया। तुम पर नज़र रखनी है, बिना खाइफ हुए चबा चबा कर बताया गया। तारिया दांत ही कचकचा कर रह गई। मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी, ये डर है क्या? सुलगती तंजिया मुस्कुराहट होंठों पर लिए दारान की आंखें टटोलने लगी। नहीं, तुम किसी के साथ भाग कर जहाँ जाओगी, इस जगह को तुम्हारे लिए जहन्नम बनाना मेरी अवलीन जिम्मेदारी है। दुगनी महजूज शरारत करता वो दारिया को लम्हों में होनहार बना गया। मुझे जहन्नम से मत डराओ माहिर शाह, मैं इसे अपनी मुट्ठी में लिए फिरती हूँ। वैसे ये भी जहन्नम है, तुम्हारी आंखों के सामने रहना। इस बार खुलकर मुस्कुराते हुए जहर में बुझा बुझा कर दारिया ने इसे उसकी औकात याद दिलाते जुमले कहे। तो फिर मज़े करो इसी टाइप की जहन्नम में। जब जाना हुआ तो बता देना, ले चलूँगा। और हाँ, आकिब से 2 फीट की दूरी पर रहना, यही उसके हक में बेहतर है। बिहेव लाइक अ गुड वाइफ इन फ्रंट ऑफ हिम, ओके? नरमी से उसकी गाल थपकी तो दारिया ने उसके हाथ को फौरी गुस्से से परे झटका, पर दारान इसे सुलगा कर आग लगाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नाश्ता भिजवा रहा हूँ, कर लेना। और अगेन, अगर तुम 8 बजे नाश्ते की मेज़ पर ना आई तो सारा दिन ही भूखी रहोगी। जाते जाते भी उसके अंदर धमकी से अपना खौफ जगाने की भोंडी कोशिश करके गया। दारिया इस पर तमस्खराना हंसी, जैसे उसकी खुशफहमी पर बड़ा इंजॉय कर रही हो। तुम्हारा ये गरूर एक दिन मैं ही मट्टी में मिलाऊंगी माहिर शाह। उड़ लो जितना उड़ना है। गिरोगे तो ज़मीन नहीं मिलेगी बल्कि खुदी हुई कब्र मिलेगी तुम्हें। इस वक्त वो इससे इतनी तंग थी कि समझ ही ना पाई कैसी बुरी बात कह गई है, पर जब कह बैठी तब एहसास हुआ तो खुद की सरजनिश की। क्या बकवास कर रही हो दारिया? अपने आप को डपटे वो इन फजूलियात को झटक कर वहीं सर थामे मैट्रेस पर जा बैठी, क्योंकि अब सिर्फ नाश्ते का इंतज़ार था और भूख आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अनीब का फैसला तुम सुन चुके हो, अब आगे का क्या इरादा है? माशाल्लाह से सेटल हो, अपने पैरों पर खड़े हो। दारिया भी तुम्हारी नहीं हो सकती, सो मुझे इजाज़त दो मैं तुम्हारे लिए कोई मुनासिब लड़की ढूंढ लूँ। 2 बजे तक मारिया चुगताई स्कूल से वापस घर आई तो तवक्को के बरखिलाफ आकिब को चुगताई पैलेस पाया। वो एक अहम मीटिंग के लिए होशाब ही रवाना होने वाला था। बहुत कुछ सोचा था इसने, नानों के पास ही काउच पर आकर बैठने और पूछने पर वो अपने फ़ोन को सामने मेज़ की ग्लास सतह पर रखे उनकी जानिब पलट कर बैठा। इस घर में मेरी बीवी बनकर अगर कोई आएगी तो वो दारिया है। आपने हमेशा हर बुरे अच्छे काम में मेरी मदद की है नानो, प्लीज़ इस बार भी मेरी राजदान बने। मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मर जाऊंगा। मैं दारिया को इस शख्स से वापस लूँगा। वो ना तो जानती है उसे, ना प्यार करती है। मैं दारिया को कायल करूँगा। वो मेरी बात समझ जाएगी कि वो सिर्फ मेरे पास महफूज रह सकती है। आकिब की तमाम बातें सुनकर मारिया साहिबा के चेहरे पर तनाव आ गया।
तो क्या तुम इसका घर खराब करोगे, मार पीट करके छीनोगे इसे? नानो का लहजा गुस्से से लबरेज था तो आवाज़ बुलंद। मैं कोई खून खराबा किए बिना अगर दारिया को दारान से वापस लूँ तो आप मेरा साथ देंगी? कसम खाता हूँ इन दोनों को कुछ नहीं कहूँगा, कोई फसाद बर्पा नहीं करूँगा। लेकिन मुझे किसी अपने की ज़रूरत है। मम्मी बहुत प्यारी थी आपको, मैं उनकी अमानत हूँ आपके पास। तो क्या आप ये सह लेंगी आपका नवासा सारी उम्र तड़पता रहे, मम्मी तड़पती रहें? ये सब जज्बाती धमकियाँ इन बुजुर्ग औरत को कमज़ोर कर गई, जबकि आकिब के पास चालें चलकर बाजी मारने का हुनर पहले ही मौजूद था। बेटी बेमौत मर गई तो वो सह गई थी तब, लेकिन अब उसकी वाहिद औलाद भी तकलीफ़ से गुजरे, ये इनसे बर्दाश्त ना था। हरगिज़ नहीं। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि अगर इसके बावजूद दारिया तुम्हारी ना हो सकी तो तुम अनीब की नाराज़गी ना सिर्फ दूर करोगे बल्कि इससे शादी भी करोगे। बस इसी शर्त पर नानी तुम्हारा साथ देगी। ये शर्त सुने आकिब का हल्क तक कड़वा हो गया, लेकिन इस वक्त नानो का थोड़ा सा राज़ी होना भी गनीमत था। फौरी उनके हाथ की पुष्ट चूमते हामी भरते वादा कर लिया, ये सोचे बिना कि एक दिन किस्मत आकिब मोहान को इसी वादे की हकीकत दिखाकर मारने का फैसला कर चुकी है। बेकदरी करने वालों को की कभी कदर नहीं की जाती, यही असूल फितरत है। आकिब ने नानो से इजाज़त ली और होशाब के लिए निकला। 1.25 घंटे तक वो शाह इंडस्ट्री पहुंचा तो पता चला आज दारान भी आया है। एक तुर्किश वफद और उसकी टीम से मीटिंग थी, मगर आकिब पहले दारान से मिलना चाहता था, तभी सीधा उसके ऑफिस की तरफ बढ़ा। मैनेजर सुल्तान के हमरा दारान कुछ डिस्कशन कर रहा था जब आकिब को ऑफिस रूम के दरवाजे को खोल कर अंदर आता देखे हाथ के इशारे से मैनेजर सुल्तान को बोलने से रोक गया और एक आंख की जुम्बिश की, जिस पर मैनेजर फाइल समेटता हुआ दोनों को प्राइवेसी दी ऑफिस से निकलता चला गया। बड़ी जल्दी आ गए हो, माफ़ी मांगने आकिब मोहान। ब्लैक जीन्स के हमरा ग्रे हैंडले टी शर्ट पहने दारान ग्रेसफुल लग रहा था। बाकी उसकी लुक्स थी ही हमेशा हर एक से मुमताज़। वो ज़्यादा ना सज कर भी खूबसूरत हदोहाल और नीली आंखों के सबब वजीह दिखाई देता, जबकि आकिब भी शक्ल सूरत का काफ़ी अच्छा था। बस खराबी दिलो दिमाग में थी जो किसके नहीं होती। दारान के चेहरे पर बिखरा इस्तेहज़ा देखते बल्कि बर्दाश्त करते वो 2 कदम उठाता दारान के एन रूबरू आन रुका। सही कहा तुमने, क्या करूं, पार्टनरशिप करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी जो मार चुका हूं कुछ साल पहले। खैर तुमने जो मेरे साथ किया भूल रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि ये बिज़नेस रिलेशन ख़राब ना हो। मेरे और तुम्हारे डैड का बिज़नेस में एज ए पार्टनर्स बहुत नाम रहा है और मैं नहीं चाहता ये रवायत हमारी ज़ाती झगड़ों के सबब टूटे। दारिया को बीवी बना लिया तुमने, लेकिन वो मेरी दोस्त है, इस बात को जहन नशीन कर लो। ना तो तुम मुझे इससे मिलने से रोक सकते हो ना बात करने से। आकिब अपनी बेइज्जती भूल जाए ये कहाँ मुमकिन था। वो तो ऐसे तकरीर जा रहा था जैसे दारान इसे जानता ना हो। रग रग से वाकफियत रखते इंसान पर यकीनन क्या गुजरती है ऐसी मकरू और झूठी बातों से। वो हंस पड़ता, बिल्कुल जैसे दारान जहरबंदी की इंतहाओं को पहुँचे। मुस्कुराता हुआ खुद भी 2 कदम आकिब मोहान के मुकाबिल चला आया। उसकी ओशन ग्रेश ब्लू आंखों में हमेशा से एक तूफान हलकोरे लेता था जो सामने वाले को डरा देता। दोस्त हो तुम दारिया के? हाँ, देख लेंगे आके मोहान, तुम मिल सकते हो इससे जब चाहे, लेकिन जिस लम्हा तुम्हारे अंदर उसके मुकाबिल ज़रा सी भी आशिकी जागी, वो लम्हा तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी बना दूंगा। ये वार्निंग थी और ऐसी जिसने आकिब का हल खुश किया। ये अलग बात कि वो जबड़े बेचता अपने अंदर का डर काबू कर गया। दारान ने तपती हुई मुस्कुराहट देते उसका सीना थपकाया और मेज़ के सामने लगी 2 कुर्सियों में से दाएं चेयर की तरफ बढ़ा। पर्सनल ज़िंदगी को मैं भी प्रोफेशनल से अलग रखने का आदी हूँ। अच्छा सोचा तुमने, बैठो कॉफ़ी मंगवाता हूँ, कुछ नेक्स्ट ड्रीम प्रोजेक्ट के मुतलिक डिस्कशन भी करनी है। फौरी प्रोफेशनल अंदाज अपनाए दारान ने पूरे एतमादी से जगह संभाली तो आकिब को भी चारों नाचार उसके साथ ही सामने बैठना पड़ा। लेकिन वो समझ रहा था दारान उसके धोखे में आ गया है, लेकिन दर हकीकत धोखे में डालने का शौक इस जल्लाद को था। आखिर मीटिंग के बाद शाह हवेली गया तो गार्ड्स ने इसे धक्के देने के बजाय इज्जत व एहतराम से अंदर आने की इजाज़त दी। गन जिसे वो हमेशा पास रखता था आज गाड़ी में ही छोड़ आया। दारिया सारा दिन जिम जम कर सोई थी, तभी थकन और उदासी दूर हो गई। फिर मामू और लाला से मिलने की खुशी भी थी कि चेहरा अपनी रानाइयों के संग चमक रहा था। रही सही कसर आकिब को इज्जत व एहतराम से शाह हवेली का मेहमान बनते देखकर पूरी हुई। वो खूबसूरत लान में टहल रही थी, तभी आकिब मुस्कुराता हुआ वहीं चला आया। तुम मुस्कुरा रहे हो, मतलब गुस्सा उतर गया? दारिया को उसकी मुस्कुराहट देखकर हैरत हुई। वो भी शर्मिंदा होते हंस पड़ा। गुस्सा नहीं था, हर्ट हुआ था। लेकिन जब दारान ने आज बताया वो तुम्हें भी बात बात पर हर्ट करता है तो तुम्हारी फ़िक्र में जबरन सही पर इससे पैचअप कर लिया और इसी ने मुझे तुमसे मिलने की इजाज़त दी। ये इस आदमी की फितरत है, वो एक मगरूर और पत्थर दिल इंसान है दारिया, और मेरा वो सारा गुस्सा इसी सबब था। मैं तुम्हें उसका देखकर बर्दाश्त ना कर पाया था। बहुत चालाकी से मजलूमियत भरे अंदाज में आकिब ने अपना खेल शुरू किया। दारिया के चेहरे की रौनक मांद पड़ी।
کیا مطلب تمہارا؟ اس نے تمہیں کیوں بتائی ہماری پرسنل بات؟ اگر میں غلط نہیں تو وہ صرف تمہارا بزنس پارٹنر ہے نا، دوست تو نہیں ہے۔ داریہ کے تن بدن میں لگی آگ۔ داران ایسا کیسے کر سکتا ہے اس کے ساتھ؟ اسے تمہارے اور اپنے پرسنل کو یہاں کرنے کا کیا نقصان ہوگا؟ کچھ نہیں، ویسے بھی وہ دوسروں کو ہرٹ کرنا اعزاز سمجھتا ہے، تو کیوں نہ اس کا اظہار کر کے خود کو تسکین دیتا۔ خدا کا شکر ہے وہ میرا دوست نہیں، اور ایسے دوستوں سے اللہ بچائے جو دشمنوں سے بھی بڑھ کر زہریلے ہوں۔ عاقب نے دل کی ساری جلن اور بڑاس فرصت سے نکالی، یہ جانے بنا کہ داریہ کے دل پر قیامت گزر رہی ہے۔ اسے داران سے کوئی امید نہ بھی ہو، لیکن یہ سب برداشت کرنا داریہ کو عجیب سی اذیت پہنچا رہا تھا۔ جاری ہے، اگلا نوٹ پڑھ لیں۔ جی جناب، کیسی لگی قسط؟ کیا لگتا ہے اب کیا ہوگا؟ اگلی قسط کچھ اسپیشل ہے؟ اگر 1-2 دن ایپی نہ آ سکی وقت پر، یہ گیپ آ گیا تو پیش کی معذرت۔ میرے ہسبینڈ 1.5 ماہ بعد جاب سے گھر آتے ہیں تو آج کل وہ گھر ہے، مصروفیت بڑھ گئی۔ یہ جو میں ناول آپ کو دیتی ہے انہی کے وقت کے سبب مجھے لکھنے کی مہلت ملتی ہے، ورنہ پورا گھر سنبھالتی ہوں۔ سو جب وہ گھر ہوں تو پھر میرا کام کرنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ تو پلیز درگزر کیجیے گا۔ ویسے میں کوشش کروں گی گیپ نہ آئے، اور آ بھی گیا تو ڈبل قسط دے کر حساب چکتا کر دوں گی۔ تو آج کی قسط کا بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا؟ داران ابھی اپنا رویہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ داریہ پر اسے دارن کی موت کو لے کر پختہ شک ہے۔ وہ بھلے روڈ اور ظالم بن رہا ہے، لیکن حالات کا یہی تقاضا ہے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ عاقب ایک ہوشیار ولن ہے میرے ناول کا، جو آپ کو غصہ بھی دلائے گا، رلائے گا بھی، اور شاید ہنسائے بھی۔ تو چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں 20 ایپیسوڈ میں، بہت ہی اسپیشل اور مزیدار ایپیسوڈ میں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے اچھے ریویوز دینا مت بھولا کریں، اور سب جاگ جائیں، اب تو 20 ایپیسوڈ ہونے والی ہیں۔